नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कल मध्य प्रदेश के लिए चुनाव है और अब जबकि राजस्थान और तेलंगाना सबकी निगाहों में है, तो उसमें भी राजस्थान का रण जो है वो बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। कुछ दिलचस्प तस्वीरें और बयान अब वहां से सामने आ रहे हैं। आज एक तस्वीर देखने में आई जब राहुल गांधी 55 दिन तक तो नहीं पहुंचे राजस्थान, लेकिन जब कई बार उनकी मान मनोवल की गई और कहा गया कि सारी लड़ाई झगड़ा एक जगह रख देते हैं, अब सब हाथ मिलाते हैं, मतलब राज्य के नेता, तब मान गए राहुल गांधी और आज पहुंचे। और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि किस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक मंच पर हाथ मिलाते हुए हैं और यह भी दावा किया कि सब कुछ ठीक ठाक है, जीत होगी तो कांग्रेस पार्टी की होगी, कोई उथल पुथल पार्टी में नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कल राजस्थान में बिगुल फूंका और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वोट नहीं मिलेगा अशोक गहलोत को। लाल डायरी जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, ये तमाम मुद्दे आज जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के लिए घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें भी कई सारे मुद्दे, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर कि लाल डायरी का मुद्दा हो और उसके अलावा पेपर लीक को लेकर एसआईटी का गठन करने का मुद्दा हो और खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए भी उनके पिटारे में बहुत सारी चीजें थी। तो जरा बात करने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ कांग्रेस की वो लाल डायरी जिसका बखान प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और लगातार उसके एक एक करके पन्ने सामने आ रहे हैं, जिसमें अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की कही हुई कुछ बातें भी हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि इस बार वो सत्ता परिवर्तन करके दिखाएगी। किसके दावों में कितना दम है जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन बयानों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से ये मुद्दा आज चर्चा में रहा। श्री अमिताभ कांत जी, सेक्रेटरी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नांगसांग लेम्बा जी, ladies and gentlemen, friends from media, namaste, a very good evening to all of you. We gather here today at Vigyan Bhavan to celebrate the pivotal role that the media plays in our democratic fabric. Since today's topic is artificial intelligence, so I was tempted to test the use of ChatGPT to draft my speech. However, I assure you, these are my own words. Friends, on the National Press Day, I extend my warm wishes to the media fraternity. It is a day of reaffirmation of our collective commitment to responsible journalism. As Bharat is poised to become the third largest economy in next few years, I look forward to the media playing an increasingly constructive role in not only in highlighting the story of transforming India, but also the hopes, aspirations of billion voices from across various regions and sectors. National Press Day honors the tireless commitments of journalists dedicated to strengthening our democracy. We stand at a crucial point in history, witnessing rapid global evolution driven by advancing technology. But as the Vice President of India in his speech said, that the journalist in India and across the world has played a very, very important role along with the frontline workers, warriors during the COVID-19 pandemic. Many have lost their lives, but they have played their role as a responsible journalist to bring the stories and the facts from the ground to all of us and to the world across. I extend my appreciation to the Press Council of India for fostering a meaningful debate on today's theme, Media in the Era of Artificial Intelligence, inviting diverse insights. Friends, the digital age has ushered in a new era where artificial intelligence is increasingly used to produce news content. While artificial intelligence undoubtedly adds a new dimensions to news reporting,
it is crucial to recognize its limits. In my view, there can be some practical uses of artificial intelligence in its current form, such as the internet is teeming with fake news and the whole world is grappling with its menace. We are also entering an era of deep fakes, and we have recently seen some examples. So, we are also entering an era of deep fakes and AI generated images and content. It is increasingly difficult for users to identify fact from fiction. Deep learning AI tools can now be used to both source and fact check a story in order to identify fake news. Tools to watermark AI generated content on various platforms, especially that of news media, can also be useful as a differentiating marker to content created by humans. Further, AI has already made some aspects of human intervention in the digital news redundant. Today's creators are increasingly using AI assisted caption tools to caption their video content. AI is also being used to edit audio and video content. AI is also assisting in instant language translations. AI tools are also instantly able to transcribe live press conference and provide text for writing stories or voiceovers. Apart from monitoring of user behavior, finding data patterns in user engagement, and dissemination of targeted news to the end consumer, AI is able to do these roles with ease. As a result, human intervention in the news industry is increasingly needed to review and ensure quality checks wherever there is AI intervention. And here is pertinent to point out that the role of news or the content editor in newsroom can never be fully replaced by artificial intelligence. The nuances of years of experience, context, and oversight that an editor brings will always be a step ahead of artificial intelligence. After all, AI is as good as the data and the algorithms at the back end that defines its deliverables. Friends, the Press Council of India, in its background note, rightly raises concerns about the AI's potential to create convincing deepfakes that propagate fake news and disinformation. It is crucial to ensure that the AI models do not adopt biases from their training data, thus compromising media integrity. Effectively addressing and mitigating these challenges is our collective responsibility, taking necessary precautions to uphold journalistic integrity and ensures the responsible use of artificial intelligence in the media. Friends, India, that is Bharat, is a country with rich tapestry of diversity and has always cherished the principles of freedom, and this extends to the freedom of the press. Our government staunchly believes in upholding the value of the democracy and ensuring that the media operates without undue interference. In fact, Bharat boasts a vibrant and free press, providing a platform for diverse voices and opinions. It is crucial to address the persistent misconceptions propagated by certain Western biases regarding the portrayal of Bharat and its media. The colonial hangover often skews perceptions, and we assert that our media landscape is dynamic, reflective, and stands on its own merit. India's media is a reflection of its cultural richness, and we must take pride in the contributions to make it to the global discourse. However, even as we celebrate the freedom of the press, we cannot turn a blind eye to those who seek to undermine the spirit of our nation. There are individuals and media outlets that consistently spread fake propaganda against Bharat, both domestically and internationally. It is our collective responsibility
to challenge such narratives, expose the falsehoods, and ensures that truth prevails. Friends, in the era of artificial intelligence, where technology shapes the way the information is disseminated, it becomes imperative for the media to remain cautious. We live in a world where misinformation can be amplified with a click of a button. Our government encourages the media to adopt a discerning approach, avoiding the pitfalls of sensationalism, and steering clear of narratives that may harm the fabric of our society. We firmly believe that the media must act as a responsible pillar of our democracy, calling out fake narratives in the open. It is essential to safeguard the interest of our nation and avoid providing space to anti-India views that can threaten the unity and integrity we hold dear. As we navigate the evolving landscape of media in the era of artificial intelligence, our government is committed to supporting initiatives that harness technology for the greater good. We envision a media ecosystem that embraces innovation while upholding the values that define our great nation. In conclusion, let us reaffirm our commitment to free, responsible, and dynamic media that contributes to the progress and unity of our nation. On this National Press Day, let us celebrate the power of truth and responsible journalism, working hand in hand to build a stronger and more resilient Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. तो राष्ट्रीय प्रेस डे के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर संबोधित कर रहे थे, जहां पर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे और इस मौके पर उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार विश्व में अपना मुकाम हासिल कर रही है और इसके अलावा जो तमाम योजनाएं हैं देश की, उनको लेकर भी उन्होंने बात कही। चलिए लौटते हैं राजस्थान के रण की तरफ और जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे वो बयान जरा एक बार उन पर नजर डालते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, PM आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। महिलाओं के लिए जो मूल बात है वो सुरक्षा की दृष्टि से हर एक जिला में महिला थाना खोला जाए, उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाए और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड। आगे भी हम लोग जो स्कीम बनाई है और नई स्कीम लेके आएंगे, स्कीम बन के उनको और मजबूत करेंगे। नौकरी हमने दी, 3 लाख नौकरी दी है। हिंदुस्तान में कितने राज्यों ने दी है। पेपर लीक की बात करते हैं, पेपर लीक के लिए हमने आजीवन कारावास का कानून बना दिया। पूरा राजस्थान कह रहा है जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। पूरे राजस्थान ने ऐलान कर दिया है, गहलोत जी कोनी मले वोट जी। तो बीजेपी और कांग्रेस के तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन मैदान में बीएसपी भी कूद गई है और मायावती, उनकी रैलियां अब शुरू होने वाली हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी राजस्थान में पहुंच गए हैं।
इसके अलावा अखिलेश यादव तो पहले से ही मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में कांग्रेस को चुनौती देने के लिए खड़े हैं। तो आज हमारी कोशिश है इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और खासकर इस मुद्दे पर भी बात होगी कि क्या जो हाथ मिले हैं वो दिल भी मिलने तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, दोनों ही तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो या फिर की कांग्रेस पार्टी। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हमारे पास हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजस्थान से उनके प्रवक्ता सुभदेश सिंह चौहान जी सीधे जुड़ गए हैं। हमारे साथ बसपा के राज्य के अध्यक्ष भगवान दास बाबा जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजश्री माथुर जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत राकेश त्रिपाठी जी आप ही से करूंगी कि राहुल गांधी ने हाथ भी मिला दिए, हाथ ऊपर भी किए और ये भी कह दिया कि कोई खटपट नहीं है, कोई दिल में मनमुटाव नहीं है, सब एक है और अब अगर कोई जीतेगा तो वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी स्वीप करके। बिल्कुल तेज गति से बढ़ चुका है और अब भी कांग्रेस पार्टी को इसी मुद्दे पर सफाई देनी पड़ रही है कि हम साथ साथ हैं। तो इससे पता चल जाता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर किस प्रकार की अवस्था बनी हुई है। सच ये है कि पूरी सरकार के दौरान सचिन पायलट लगातार विरोध का झंडा लेकर के बुलंद रहे। सच ये है कि पूरी राजस्थान सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी रही। सच ये है कि राजस्थान की जनता कानून व्यवस्था के बिगड़ने से कराहती रही और इसलिए राजस्थान की जनता इस सरकार से निजात चाहती है जो गृहलूट सरकार है, जिसने लोगों के पैसे को, खजाने को लूटने का काम किया है और इसके राज उस लाल डायरी में बंद है। ये लाल डायरी आज कांग्रेस के लिए एक रेड सिग्नल है कि आज खतरे का निशान दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान की जनता अब कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल अपने घरों से निकल चुकी है। हमें पूरा विश्वास है कि वोटिंग के दिन ईवीएम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का फूल का बटन दबा करके लोग विकास की गारंटी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आश्वासन होता है, जो वचन होता है, वो गारंटी होता है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और ये ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने कहा था कि आतंकी घटनाओं को हम देश से पूरी तरह से समाप्त करेंगे। आज हम पूरे जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि आज देश में आतंकी घटनाएं नहीं हो रही है। ये आज हमने करके दिखाया है कि हम आतंकियों के निशान जो उनके ठिकाने हैं उनको घर में घुसकर मारेंगे। हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। आज दिव्य और भव्य राम मंदिर बनना है, ये तारीख पूछा करते थे। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि वहां कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर प्रधानमंत्री जी के साथ आज उनके पुतले के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए होड़ मची हुई। राकेश जी, आ रही हूं, मैं मुद्दों पर भी आऊंगी, एक एक करके इन मुद्दों पर भी आते हैं। लेकिन शुभदेश जी, सवाल तो वही खड़ा होता है कि 5 साल तक तो सचिन पायलट ने पूरा बिगुल फूका हुआ था अशोक गहलोत की तरफ। उनके खिलाफ वो धरने पर भी थे, उनके खिलाफ मोर्चा निकाल रहे थे, उनके साथ के जो लोग थे वो लगातार भर भर कर बात कर रहे थे। निकम्मा से लेकर गद्दार तक पता नहीं क्या क्या अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को कहा था। क्या राहुल गांधी के एन चुनाव से पहले ये हाथ मिलवाने से जनता वो सारी चीजें भूल जाएगी और पार्टी भी? देखिए पाराशर जी, जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत पुरानी बात है और अभी की जो वर्तमान की स्थिति है जिसमें हाथ मिलानी बात है, ये एक चुनावी प्रक्रिया होती है। जब भी राजस्थान के जो बड़े लीडर जब रैली में सम्मिलित होते हैं तो जितने भी जो लोग होते हैं वहां पे इस तरीके से रैली के अंदर आपस में आगाज किया जाता है कि कांग्रेस का परिवार एक है और कांग्रेस का परिवार एक रहते हुए राजस्थान के आमजनों के लिए जो 5 साल से लगातार आमजनों के हितों के बाबत जो सरकार ने जो कार्य किए हैं, धरातल पे जो कार्य किए हैं, उस कार्यों को मोहर लगाने के लिए एक सूत्र का नारा दिया जाता है। वो आज श्रीमान हमारे राहुल गांधी जी ने किया है। और रही बात है कि जो लगातार जो हम जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, वो सारी की सारी जो गारंटियां हमने दी। देखिए, हमारा याद कीजिए पुराना घोषणा पत्र, उसमें हमने लगभग अपने वायदे 94% वायदों को पूरा किया है, तब हम जनता के बीच में गए हैं। और बात आती है, अभी हमारे भाजपा मित्र राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है।
मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी के वायदे हुआ करते थे। गारंटी शब्द तो अब इन्होंने कांग्रेस से चुराया है। जैसा कि आज जो घोषणा पत्र जारी किया है, जनसंकल्प जिसको पत्र बोल रहे हैं भाजपाई के लोग, उसमें आपने देखा है वो केवल एक कांग्रेस का बनाया हुआ जो गारंटी पत्र है उसी की फोटोकॉपी करी है। उसमें मैं एक कोट करना चाहूंगा, उस घोषणा पत्र में ममता शर्मा का नाम है। आप देखिए जी, ममता शर्मा का नाम है। ममता शर्मा पहले कांग्रेस में थी, बाद में भाजपा के अंदर इनके घोषणा पत्र की मेंबर रही है और वो आज कांग्रेस में शामिल है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने एज इट इज बताया और इन्होंने छाप दिया और उस ममता शर्मा का आज भी जनसंकल्प पत्र के अंदर नाम है। तो ये तो आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं राकेश त्रिपाठी। ये गुफा हुआ है क्या? आप देखिए उसमें। हाँ ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, ये क्या मामला है? एक मिनट सुन लेते हैं, उनका बयान सुन लेते हैं ना, वो क्या कह रहे हैं। चुनाव के मौसम में रीमा जी सारे नेताओं का एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में आना जाना। ये पीछे किसकी आवाज आ रही है? ये स्वाभाविक। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए तो आज इतना संकट है कि कांग्रेस पार्टी आज एकजुट रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। जब 5 वर्ष तक सत्ता में रहते हुए एक दूसरे के साथ इतना टकराव था, एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर यात्राएं निकाली जा रही थी, आज ये आप कैसे एकजुटता का संदेश दे पाएंगे? किसी एक इतनी सफलता से हमारे राष्ट्रीय योद्धा नाप के एक कदम रख रहे हैं। मानो इंसान टूटे हुए कांच पे चल रहा हो। हम सभी अश्व योद्धा जानते हैं। देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि जब निशान टोली परेड ग्राउंड में प्रवेश करे और जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जो लोग वर्दी में हैं वो सलामी देंगे। ऐसी क्या खास बात है रेजिमेंट के निशान में जो हम निशान टोली के सामने खड़े होकर सलामी देते हैं? दोस्तों, सेना के बहादुर जवानों के परम बलिदान, उनके खून की आहुति से रंगा होता है रेजिमेंट का निशान। पीढ़ी दर पीढ़ी बहादुर सैनिक अपने देश के लिए नाम, नमक और निशान के लिए अपनी जान कुर्बान करते आए हैं। इसीलिए दोस्तों, जब निशान टोली हमारे सामने से गुजरती है, हम अपने वीरों के परम बलिदान, उनके निशान को सलामी देते हैं। तिरंगा धारक रिसालदार भवानी सिंह, राष्ट्रपति जी का निशान धारक रिसालदार सुंदर सिंह और राष्ट्रपति अंगरक्षक निशान धारक रिसालदार कुलबीर सिंह संत। गुजरेंगे कदम कदम तुर्की और सरपट से नंबर 1 डिवीजन आगे राष्ट्रीय अंगरक्षक सेक्शन दरगाह कदम कदम। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट अब मंच से गुजरेगी 3 बार। पहले कदम कदम, फिर दुड़की और फिर सरपट की चाल पर। जाहिर है मन में यह सवाल उठता है कि रेजिमेंट 3 बार मंच से क्यों गुजरेगी?
ये सवाल ज़रूरी है और इस सवाल का जवाब जानना और भी ज़रूरी है। सभी फोटोग्राफर से निवेदन है, कृपया परेड ग्राउंड से दूर रहिए, अपने कैमरा के फ्लैश बंद रखिए। The President's bodyguard being led by the Commandant, Colonel Amit Behlwal. Colonel Amit Behlwal astride Plutus, leading the parade, followed by his trumpeter Dafadar Manjeet Kumar Dagar astride Alexander. The Nishan Toli before the day's crown. National flag is being carried by Risaldar Bhavani Singh astride Victory. The President's standard of the bodyguard is being carried by Risaldar Sundar Singh Tanwar astride Ace. And the regimental standard of the President's bodyguard is being carried by Risaldar Kulveer Singh Sandhu astride Amigo. The color escorts are Risaldar Mukesh Dalal and Naib Risaldar Satinder Singh. नंबर 2 डिवीजन के पीछे रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव, और जैसा कि मैंने आपको बताया इनके घोड़े का नाम है सुल्तान, भारत के सबसे ऊंचे घोड़ों में से एक। और देखिए कितनी खूबसूरती से डंके की ताल के साथ अश्व योद्धाओं ने अपनी चाल बदल ली। सवाल आपके सामने ये था कि परेड 3 बार मंच से क्यों गुजरती है? तो दोस्तों, परमात्मा ने इंसान को 2 पैर और 1 चाल दी, लेकिन परमात्मा ने घोड़ों को 4 पैर और 3 अलग अलग प्रकार की चालें दी हैं। कदम कदम की चाल में हर पैर जमीन पे एक एक करके गिरता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। दुड़की की चाल, जिसे अंग्रेजी में ट्रॉट कहते हैं, जोड़ी जोड़ी से पैर जमीन पे गिरते हैं, जो आपके सामने अब हो रहा है। देखिए, अगला बायां, पीछा दायां, अगला दाहिना, पिछला बायां। और इस चाल की ताल है 1 2 1 2 1 2। इसके बाद सरपट की बात करेंगे। सैन्य संगीत की इस धुन का नाम है कील रोग। राष्ट्रपति जी का निशान और राष्ट्रपति अंगरक्षक का निशान। कितना ऐतिहासिक दिवस है। विश्व की सबसे पुरानी एक्टिव रेजिमेंट राष्ट्रपति अंगरक्षक आज अपने 250 साल की सालगिरह मनाते हुए 4-4 के सेक्शन में बहुत ही शानदार ड्रेसिंग के साथ। और वो देखिए, डंके की संकेत के साथ चाल बदल ली हमारे अश्व योद्धाओं ने। इस धुन का नाम है जिप्सी डांस और घोड़ों की इस चाल को सरपट कहते हैं। इसमें पहले 1 कदम जमीन पे लगता है, फिर जोड़े के साथ 2 कदम और फिर चौथा। इसीलिए सरपट की चाल होती है 1 2 3 1 2 3। जरा गौर से देखिए, ट्रम्पेटर का घोड़ा सफेद है और निशान धारक का घोड़ा भी सफेद है। तो दोस्तों, ये एक बहुत पुरानी सैन्य प्रथा है कि ट्रम्पेटर, ब्यूगलर, संकेतधारी और ध्वजधारियों के घोड़े हमेशा से सफेद रहे हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में संकेतधारी और ध्वजधारियों पर कभी हमला नहीं किया जाता।
Ladies and gentlemen, the parade would now reform at the inspection line and then advance in review order. देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे आज अपने अंगरक्षकों की गौरवशाली सेवा के 250 वर्ष पूरे होने पर और उन्हें प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ बॉडीगार्ड एंड रेजिमेंटल स्टैंडर्ड्स का सम्मान प्रदान किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं पीबीजी के सभी अधिकारियों, जूनियर कमीशन अधिकारियों और मेरे रेजिमेंट के सभी अंगरक्षकों को ड्रिल और माउंटेन परेड के उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए बधाई देती हूँ। मुझे सभी घोड़ों के उत्तम स्वास्थ्य और उनकी उच्च स्तर की देखभाल की देखकर भी बहुत खुशी हो रही है। सभी घोड़ों के उत्तम प्रदर्शन के बिना आज का आयोजन सफल नहीं हो पाता। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि पीबीजी के पूर्व कमांडेंट, अधिकारी, जेसीएच और सैनिक भी आज इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ उपस्थित है। मैं आप सबका इस आयोजन में स्वागत करती हूँ। आज का ये आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को 60 वर्षों के बाद एक बार फिर से सेना में सर्वोच्च स्टैंडर्ड यानी प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड ऑफ बॉडीगार्ड प्रदान किया गया है। साथ ही रेजिमेंटल स्टैंडर्ड्स का सम्मान भी पीबीजी को आज दिया गया है। मैं इस उपलब्धि के लिए पीबीजी की पूरी टीम को बहुत बधाई देती हूँ। मैं पीबीजी को उनकी उत्कृष्ट सैन्यों, परंपराओं और लोकाचारों तथा उनके सभी कार्यों में प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन के लिए भी बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं और उनके वीर घोड़ों की गाथाओं ने सदियों से हमारी पीढ़ियों को प्रेरित किया है। आप वर्तमान समय में हमारी भूमि की इस समृद्ध विरासत और संस्कृति के ध्वज बढ़ाकर राष्ट्र को आप सब पर गर्व। मैं आपकी सेवाओं की हृदय से सराहना करती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे आत्मसैन्य बल होने के कारण ये सम्मान आपके लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेकर आता है। मुझे विश्वास है आज राष्ट्रपति भवन की सर्वोत्तम परंपराओं को बनाए रखने के लिए अद्वितीय समर्पण, अनुशासन और वीरता के साथ
प्रयासरत रहेंगे और हमारी महान सेना की सभी रेजिमेंट्स के लिए आदर्श प्रस्तुत करेंगे। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर फिर से आप सबको बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ। आप सदा ऐसे ही मातृभूमि की सेवा करते रहें और देश का गौरव बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति के अंगरक्षक अपना 250वां वर्ष की जो अपनी सेवा है उसका जश्न मना रहे हैं और इसी ऐतिहासिक मौके पर आपने सुना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जिन्होंने की परेड की समीक्षा भी की और राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित होने वाले इस समारोह के दौरान हमने देखा कि बैंड डिस्प्ले, घुड़सवारी का प्रदर्शन, भारतीय मार्शल आर्ट प्रदर्शन और संगीत में सवारी का जो आयोजन था वो बेहद ही खूबसूरत ढंग से किया जा रहा था। चलिए लौटते हैं 5 की पंचायत के अपने मुद्दे की तरफ, और जिसमें हम बात कर रहे थे किस तरह से राजस्थान के रण में जो मुद्दों की भरमार है उस पर जरा वापस लौटते हैं। मैं अब राकेश शुक्ला जी एक बार आपको डिबेट में लेकर आना चाहूंगी। जो बात कांग्रेस के दावों में दिख रही है कि हमारे बीच में अब सब कुछ ठीक है, क्या इस एक फोटो ऑप से वो सारी चीजें धुल जाएंगी जो इतने समय से चलती आ रही थी? रीमा जी, 36 महीने की जो सियासी लड़ाई है वो 6 महीने में खत्म नहीं हो सकती। आप याद करिए कि ये वही अशोक गहलोत जी हैं जिन्होंने सचिन पायलट को कांग्रेस की दहलीज लांघने के लिए मजबूर कर दिया था, और ये वही सचिन पायलट हैं जिन्होंने गहलोत सरकार को संकट में डाल दिया था। सवाल ये है कि इन दोनों नेताओं की नाक की लड़ाई में कांग्रेस की नाक फंस गई है। ऐसे में ये आज की जो फोटो सेशन हुआ और उसमें ये दावा कर देना कि सभी तरह का पटाक्षेप हो गया है, हमको ये भी याद करना चाहिए कि अशोक गहलोत की नज़र में आला कमान का फरमान भी मायने नहीं रखता, क्योंकि इसी तरह के विवाद को ख़त्म करने के लिए सोनिया गांधी जी की तरफ से मीटिंग बुलाई गई, उसमें अशोक गहलोत जी को आमंत्रित किया गया। अशोक गहलोत जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, वो नहीं आए। यदि आला कमान हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी को माने तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से भी एक मीटिंग बुलाई गई, उसमें भी गहलोत जी को बुलाया गया, लेकिन गहलोत जी उस समय भी बीमार पड़ गए और पैर में पट्टी बंधी हुई एक फोटो प्रसारित की गई थी। अब ये सारी परिस्थितियां देखने के बाद क्या हम इस 6 मिनट को मान लें कि 36 महीने का विवाद खत्म हो गया? ये बड़ा, मुझे लगता है ये हजम नहीं होती ना मतदाताओं को और ना ही पार्टी के उन समर्थकों को जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के साथ है। ओके, राष्ट्रीय माथुर जी, जो बात यहां पर निकल कर आ रही है, क्या आम आदमी पार्टी के लिए भी ये एक मुद्दा है, या फिर कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने तो सीधे कह दिया है कि उनके लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ही सेम एक दुश्मनी में अगर दिखाई दें तो है, लेकिन आपके लिए इस राजस्थान के रण में सबसे बड़ी चुनौती कौन है? कि दोनों ही दल है हमारे लिए, क्योंकि हमारा एजेंडा जो है पार्टी का वो सबसे बड़ा ये है कि हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, और व्यवस्था परिवर्तन तो इन दोनों की ही प्राथमिकता में नहीं है। यहाँ तो बीजेपी को देखिए तो भारत को अफगानिस्तान बनाने पे मोदी जी तुले हुए हैं, और कांग्रेस को देखिए तो वहां पे भी डायरिया निकल रही है। इवन सचिवालय में भी देखिए आप जाकर के तो वहां सचिवालय में से सोना निकल रहा है एक अलमारी में से। मतलब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और क्या होगी? तो इसलिए हम इस चीज को नहीं कह सकते कि हम लोगों इन दोनों से ही कहीं ना कहीं एक लगाव रखते हैं। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा तो मुद्दा ही व्यवस्था परिवर्तन है, और जो काम की राजनीति करेगा आम आदमी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी निश्चित रूप से, लेकिन काम की राजनीति कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है, तो ये तो एक आपने एक अजीब सा कुछ स्टेटमेंट दिया, क्योंकि शुभदेश जी एक तरीके से अखिलेश यादव अब आपके साथ नहीं है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल आपके साथ नहीं है, तो ये इंडी गठबंधन तो एक तरीके से इस चुनाव में जो स्टेट इलेक्शन है उसमें दिखाई दे गया है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह अकेली है। तो ये अकेला रहना, ये आपका खुद का फैसला था कांग्रेस का, या इन दलों ने आपको अकेला कर दिया है? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है वो लोकसभा चुनावों के संदर्भ में है, पूरे भारत के संदर्भ में है। अभी जो राज्य चुनाव है तो राज्य की हर पार्टी की अपनी इकाई होती है, वो इकाई स्वतंत्र है इस बात को लेकर के कि अपने विषय लेकर के वो चुनाव में जा सकते हैं। राजस्थान की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे अन्य की बात, तो सभी लोग स्वतंत्र है, जा सकते हैं। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर है।
हमारा जो गठबंधन है या जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, काम चल रहा है, वो सब आगे लोकसभा चुनाव को लेकर के है और वो समय समय पर आपको इस तरीके की सूचनाएं दे दी जाएगी कि आगे क्या हो रहा है। अभी जो बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सदैव अकेली लड़ी है और अपने दम पे लड़ी है। अब देखिए होता क्या है कि बीजेपी में जिस तरीके से 4 या 5 गुटों में विभाजित है, 4.5 साल तक बीजेपी का कोई भी नेतृत्व, मैं स्थानीय नेतृत्व की बात कर रहा हूं, आप चाहे कर्नाटक का चुनाव देखें, चाहे राजस्थान का चुनाव देखें, अभी बता दीजिए किस नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं? क्या यहां भी मोदी चेहरा है? हाँ, हमें कबूल है मोदी चेहरा, होने दीजिए राजस्थान का स्वाभिमान और वहां से गुजरात का अहंकार, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। हम मोदी वर्सेस गहलोत करने को तैयार है, हम इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात है, आपके पास स्थानीय चेहरा कौन है? वसुंधरा जी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजेंद्र सिंह राठौड़ है, सीपी जोशी है। आप बताइए तो सही कि कौन सा चेहरा जो आप स्थानीय चेहरे को यहाँ पे लेके आ रहे हैं? आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और नहीं ये सवाल तो इसलिए ये सवाल तो यहाँ पर पूछना पड़ेगा कि क्या ये स्टेटमेंट जो आप दे रहे हैं, जो आप बीजेपी से पूछ रहे हैं, इसके साथ सचिन पायलट भी खड़े हैं कि अशोक गहलोत ही सब कुछ है पार्टी में इस वक्त? क्योंकि उनसे जब पूछा जाता है वो कहते हैं ये तो विधायक दल की बैठक में तय होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं है, अशोक गहलोत है या नहीं। तो आपने कैसे डिक्लेयर किया ये? नहीं, मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा। हमारा जो नेतृत्व है 5 साल लगातार जो सरकार की है वो अशोक गहलोत जी ने अपने नेतृत्व के अंदर राजस्थान के अंदर कार्य किया है। तो अभी जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो हमारे युवाओं के आदर्श आइडियल सचिन पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। ये क्लियर नहीं है ना, आप ये कह रहे हैं अभी क्लियर नहीं है। लीडरशिप तो क्लियर है, लीडरशिप है। लीडरशिप और मुख्यमंत्री दोनों अलग अलग। अभी बताइए ना, जिस तरीके से भाजपा के अंदर 4-4, 5-5 गुटों का विभाजन हुआ, जिस हिसाब से एक किसान नेता के परिवार के अध्यक्ष को हटा करके आनंद फानन में आप सीपी जोशी को लेके आए, उन सबसे की बातें हैं। राजेश शुक्ला जी कह रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बारे में, तो शुक्ला जी बाकी चारों लोगों के बारे में तो बता दीजिए ना कि भाजपा में लगातार 4.5 साल तक इस परिवार में जो विघटन रहा, जो आपस में ये बातचीत तक नहीं करी है, और जिस हिसाब से लगातार डोमेस्टिक इनका लीडरशिप फेलियर रहा, हम दम ठोक के कहते हैं कि राजस्थान में हम रिवाज बदलेंगे और हमारी सरकार आ रही है, हम रिपीट होंगे। राकेश त्रिपाठी जी जवाब देंगे, फिर शुक्ला जी। हाँ, देखिए, सुखदेश सिंह जी दूसरों के ऊपर आरोप लगा करके उन सवालों से बचना चाह रहे हैं जो सवाल सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा करके और बाकायदा पूरी यात्रा करके उन्होंने लगाए थे। कोई आपस में बैठ करके पार्टी दफ्तर में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ है, सड़कों पर हुआ है। ये सिर्फ फुटबॉल सड़कों पर सबने देखा है। और आज एकजुटता की बात कर रहे हैं, ये एकजुटता की बातें बेईमानी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने सार्वजनिक तौर पर किसी दूसरे नेता के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई बयान दिया है? भारतीय जनता पार्टी गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, एकजुट होकर के चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व के नाम पर कोई सिर्फ फुटबॉल नहीं है। पार्टी का नेतृत्व जो पार्टी के स्थानीय नेतृत्व के साथ परामर्श करके जो नाम तय करता है, सब उसके साथ खड़े होते हैं। कहीं पर कोई खींचतान सत्ता की मलाई के लिए नहीं होती है। और ये खींचतान क्यों हो रही थी? वो जो सचिवालय के बगल में योजना भवन से सोने की सिल्लियां और नोटों की गड्डियां बरामद हो रही थी ना, ये उसके लिए हो रही थी। वो लाल डायरी में जो हिसाब किताब का बंटवारा लिखा जा रहा था ना, ये लड़ाई उसके लिए हो रही थी। और सच ये है कि कांग्रेस पार्टी के शासन में जिस प्रकार से महिलाएं असुरक्षित हुई हैं, आज महिलाएं अपने हक, अपने अधिकार, अपने स्वाभिमान और अपनी सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। और इसीलिए आज पहली बार एक योजना जो उत्तर प्रदेश में करके दिखाई है भारतीय जनता पार्टी ने, एंटी रोमियो स्क्वाड, उसको भी हमने अपने संकल्प पत्र का हिस्सा बनाया है कि हर जिले में एक महिला थाना खोलेंगे, हर महिला थाने में हम महिला हेल्प डेस्क बनाएंगे और साथ साथ में हर पूरे राज्य में हम एंटी रोमियो स्क्वाड खड़ा करने का काम करेंगे। वरना ये जो मर्दों का प्रदेश घोषित कर रहे थे, जिस मर्दों के प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हो गई थी, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है। मुझे लगता है कि आज महिलाएं राजस्थान की अपनी आबरू की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगी। आर्य राष्ट्रीय जी, एक मिनट। सुखदेश जी, मैं शुक्ला जी के पास जाऊं, लेकिन जो पॉइंट यहाँ पर राकेश शुक्ला जी दे रहे हैं वो तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना।
बीजेपी में भले ही कई गुट हों, वसुंधरा राजे पर भी आप बात कर लीजिए, तमाम गुटों पर बात कर लीजिए, लेकिन कभी बीजेपी की ये सिर्फ फुटअव्वल और गुटबाजी कैमरे पर आकर के नहीं बोली जाती है ना, बंद कमरे में दिखाई देती है, सड़कों पर दिखाई नहीं देती है। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, किसी को निकम्मा, किसी को गद्दार, किसी को कुछ भी कहा जाए, ये सब तो आपने नहीं सुना होगा अभी तक। ये तो कांग्रेस में ही एक अनोखी चीज दिखाई देती है। रीमा जी, उसके सुनने के लिए कान थोड़े अलग चाहिए, उनको देखने के लिए चश्मे अलग चाहिए, क्योंकि कैलाश मेघवाल का बयान सुनिए कि उन्होंने कानून मंत्री के लिए क्या कहा था कि मोदी जी इनको कानून मंत्री मत बनाइए, हमारे पास सबूत है कि अर्जुन मेघवाल के प्रति पूरे भ्रष्टाचार का पूरा पुलिंदा कैलाश मेघवाल जी ने खोला था। वो शायद किसी ने नहीं सुना। श्रीमती सूर्यकांत व्यास जी ने क्या कहा था। और आप मौन फुटबॉल की बात कर रहे हैं, 22 बागी इनके खड़े हुए हैं, चाहे मैं चित्तौड़ की बात करूं, कोटा की बात करूं, अलवर की बात करूं, लेकिन वो चीजें दिखाई देनी चाहिए। अजी अभी मैं राकेश त्रिपाठी, एक मिनट, बागी खड़े होना, 40 बागियों को तो आपने भी पार्टी से कल निकाला ना, तो बागी तो दोनों तरफ। कैलाश मेघवाल कौन है? कैलाश मेघवाल कौन है? कैलाश मेघवाल जी कौन है जिन्होंने कानून मंत्री के खिलाफ बयान दिया और बताया, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमारे पास भ्रष्टाचार के सबूत है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बता दिया गया था कि आप इनको मंत्री नहीं बनाए। तो कैलाश मेघवाल कौन थे? क्या वो भाजपा के नेता नहीं थे? क्या वो भाजपा के बड़े नेता नहीं थे? अच्छा, अभी राकेश त्रिपाठी जी एक बात की चर्चा कर रहे थे कि एंटी रोमियो स्क्वाड। राकेश त्रिपाठी जी, आप यूपी से आते हैं, हमें पता है, हमारे यहाँ पे निर्भया स्क्वाड जो है पुलिस का, वो पहले से तैनात है। हमारे यहाँ पे हर जिले के अंदर महिला थाना है, महिला डेस्क है। ये बात एक अलग है कि आप संकल्प पत्र भी कांग्रेस का चुराते हैं और उसकी फोटोकॉपी आप उसमें लगा देते हैं। अभी देखिए रीमा जी, मैं एक और बात बताऊं, अभी इन्होंने कहा संकल्प पत्र में कि हम 2.5 लाख नौकरी देंगे। अरे भाई, 3 लाख तो यहाँ पे दी जा चुकी है। और आपके शासनकाल की ओर जिक्र कर देता हूं, वसुंधरा शासनकाल में मात्र 75,000 नौकरियां दी गई थी, 3 लाख नौकरियां ऑलरेडी दी जा चुकी है। आप 2.5 लाख की बात करते हैं। आपके संकल्प पत्र का तो टोटल इस तरीके से लगता है जैसे झूठ और जुमला का पत्र है। हाँ, मोदी की गारंटी हो सकती है ना, 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की गारंटी, काले धन वापसी की गारंटी, 15 लाख की गारंटी। अच्छा सर, रुकिए, राज्य पर आते हैं ना, राज्य पर आते हैं, घर देने की गारंटी, महंगाई खत्म करने की गारंटी, ये सब गारंटियां मोदी जी की गारंटी है ना। जो ओके, एक एक कर मुद्दों पर आते हैं, जल्दी से क्विक रिएक्शन राकेश जी, फिर मैं शुक्ला जी के पास चलूंगी। राकेश सर, लगता है सरकारी नौकरियों का दावा कर रहे हैं, 19 नौकरियां ऐसी हैं जिन नौकरियों में पर्चा लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, भाई भतीजावाद हुआ है, परिजनों को नौकरियां थमा देने का काम किया है। सीबीआई जांच की जब डिमांड हुई तो राज्य सरकार ने भरपूर नहीं राकेश जी, उनका पॉइंट ये नहीं था। उनका पॉइंट है कि आपकी पार्टी में भी सतह पर आ चुकी है ये गुटबाजी, और सब एक दूसरे के खिलाफ सब बात कर रहे हैं। उन्होंने गुटबाजी पर बात की ना। रिमा जी, पता नहीं कौन सा विशेष चश्मा इनके पास है, ये कह रहे हैं क्योंकि विशेष चश्मे से दिखाई पड़ता है और किसी विशेष कान के सुनने के यंत्र से ये बातें सुनाई पड़ती हैं। वो यंत्र और चश्मा कहां मिलता है, ये राजस्थान के हमारे साथी प्रवक्ता ही बता पाएंगे। लेकिन हम इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ चलती है। ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के सबूत है। अरे भ्रष्टाचार के सबूत थे तो राज्य में सरकार आपकी थी, आप भाजपा नेताओं की जांच करा लेते। लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, सरकार में आने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने जो भ्रष्टाचार किया है, इस भ्रष्टाचार की निश्चित तौर पर जांच कराएंगे। सत्ता के रसूख पर कोई जनता के गाढ़ी कमाई को लूट ले, इस बात की छूट नहीं दी जा सकती है। ठीक है, राकेश शुक्ला जी। अभी कांग्रेस प्रवक्ता जी की तरफ से कहा गया, बड़ी अच्छी बात कही गई कि जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, तो हम तो जो दिखता है उसी भी बात करेंगे कि जयपुर से मानेसर तक कांग्रेस के विधायक आए, ये दिखा। 13 से 18 तक वसुंधरा राजे की सरकार थी, मुझे नहीं दिखा कि कोई पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या उनके सरकार का मंत्री अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन किया हो। कांग्रेस के शासनकाल में जो 18 से 23 के बीच में थी, उसमें हमें दिखा कि राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, पार्टी के प्रमुख जगह पे रहे व्यक्ति ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। तो मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि हम लोग जो देखते हैं उसी पे आगे बढ़ते हैं, जो नहीं दिखता उस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। शुभदेश जी, लाल डायरी पर आपने अभी तक चुप्पी तोड़ी नहीं। अगर वैभव गहलोत के वो 4 पन्ने निकल कर आते हैं जिसमें वैभव गहलोत खुद कह रहे हैं अगर यहाँ पर हार होगी तो मेरे पिता अशोक गहलोत की वजह से होगी, क्योंकि वो अधिकारियों से मिलते हैं लेकिन पार्टी के लोगों को वो साइड में रखते हैं।
ये तमाम चीजें जब निकल कर सतह बाहर आती हैं और अगर खुलासे होते हैं तो जनता से जवाबदेही तो बनती है ना फिर इन मुद्दों पर भी। शुभदेश जी देखिए रीमा जी, ये जो लायल डायरी है ये एक काल्पनिक डायरी है जो भाजपा के द्वारा दिल्ली से चल के महाराष्ट्र के रास्ते, शिवसेना के रास्ते लोढ़ा जी तो आप ही की पार्टी के पूर्व मंत्री थे ना, लेकिन ये फिर उदयपुर पहुंचती है। लाल डायरी है तो कराइए ना, आपका तो ईडी है, आईटी है, सीबीआई है। आजकल आपको पता है भाजपा के 3 पन्ना प्रमुख है, सीबीआई, आईटी और ईडी। तो आप उनसे करा लीजिए, क्योंकि आपको क्या, तोमर का घर तो दिखाई नहीं देता। तोमर के घर पे सीढ़ी चढ़ने में तो ईडी को प्रॉब्लम आती है, चाहे 1000 करोड़ की बात हो, चाहे 500 करोड़ की बात हो। और अभी ये कह रहे थे कि भाई कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो वो राज्य सरकार कर लेती। अरे भाई, वो सुखदेव सिंह चौहान नहीं कह रहा, आप ही के नेता कैलाश मेघवाल जी ने बोला है। अर्जुन मेघवाल जी जो आपके कानून मंत्री है, भाभी जी के पापड़ बेचने वाले, उनके लिए बोला था मोदी जी को। तो जो जांच का विषय है वो केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार का विषय नहीं है। विषय इस बात का है नहीं लाल डायरी, अरे सर रुकिए ना, लाल डायरी जो है, लाल डायरी को लेकर राजेंद्र जी अगर लाल डायरी को लेकर विधानसभा तक जाते हैं, उनकी कुर्सी चली जाती है, वो इस पर मुद्दा बनाए जा रहे हैं, तो क्या ये आपका विषय नहीं है आपकी सरकार का? पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, राजेंद्र लोढ़ा जी नहीं, वो राजेंद्र गुढ़ा जी है। हाँ, राजेंद्र गुढ़ा जी। हाँ। मैंने यही कहा, लाल डायरी एक काल्पनिक डायरी है जो दिल्ली के रास्ते जिस तरीके से सरकार गिराने का प्रयास महाराष्ट्र के मार्फत रास्ते हुआ था, वही रास्ता वापिस से केंद्र सरकार ने सुना और मोदी शाह की जोड़ी ने ये ट्राई किया कि किस तरीके से अब गहलोत सरकार को बदनाम किया जाए। और वही तो इनके जो व्यक्ति है राजेंद्र गुढ़ा, जो पहले हमारे हुआ करते थे, वो अब शिवसेना की गोदी में जाके बैठ गए। हालांकि ये बात अलग है, उनको लग रहा था कि बीजेपी एक सीट छोड़ देगी तो हमारी राह आसान हो जाएगी, वो लेकिन हो नहीं पाया। तो लाल डायरी एक काल्पनिक डायरी है। सर सुनिए ना एक मिनट, शुभदेश जी मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन ये लाल डायरी जो आप कह रहे हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और बीजेपी को लेकर, इसका जिक्र तो सचिन पायलट ने अपने धरने में भी किया था ना। उन्होंने कहा था लाल डायरी का सच सामने आना चाहिए। तो सचिन पायलट तब किसके इशारों पर बात कर रहे थे? तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि सचिन पायलट ने क्यों बोला फिर लाल डायरी के बारे में? हम भी तो बोल रहे हैं ना कि सच सामने आना चाहिए। राकेश त्रिपाठी, हिम्मत, राजश्री जी इसके बाद आपके पास आऊंगी, एक मिनट। ओके राकेश त्रिपाठी जी, ये गृह मंत्रालय क्या अब राजस्थान में लाल डायरियां बंटवा रहा है? नहीं, अगर सुखदेव जी के आरोपों में दम होता तो राजेंद्र गुढ़ा आज भारतीय जनता पार्टी के कमल के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे होते। अगर राजेंद्र गुढ़ा भाजपा के आदमी होते तो भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ रहे होते। सच ये है कि वो आपके कैबिनेट मंत्री थे, सच ये है कि सच बोलने की सजा उनको आपने दी। कोई कैबिनेट का व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो वो पूरी सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कैबिनेट में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और कैबिनेट का एक मंत्री अगर इतनी गंभीर बात बोलता है, आज उसको ये पल्ला झाड़ने की कोशिश करें। विश्वास रखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लाल डायरी के हर पन्ने, हर लाइन और हर शब्द का हिसाब होगा। जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई लूटी है, एक एक पैसे का हिसाब होगा। और ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के मंदिर के लिए जो पत्थर राजस्थान से जा रहे थे वो तक रुकवा देने का काम किया था। ये नहीं चाहते थे कि प्रभु राम लला का मंदिर बनने पाए, इसलिए पत्थर रोकने का काम कर रहे थे। ऐसे पापियों को सजा देने का काम राजस्थान की जनता करेगी। राजस्थान की जनता का जो अपमान इन्होंने कराया है उसका बदला लेने का काम जनता ईवीएम पर बटन दबाकर करेगी। राजश्री जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने कहा दोनों आपके लिए समान हैं, दोनों का भ्रष्टाचार, दोनों के तमाम मुद्दे। चुनाव के बाद जो भी स्थितियां बनेंगी तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की फुल मेजोरिटी की सरकार तो बनने वाली नहीं है, तो आप जानती ही हैं। तो फिर किसका दामन थामने की तरफ आप बढ़ेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, दामन थामने वाला तो स्थिति हमारी शुरू से ही नहीं रही है। आप देखिए, हमारे अगर दिल्ली में दामन थामने वाले होते और दामन थामने की सजा हमने एक बार भोग ली है, हाँ, तो हम दामन थामने कुछ, आप इस चीज को तो हमारा आला कमान जो होंगे, हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो डिसाइड करेगा कि हमारी स्थिति क्या होगी। लेकिन ये बात निश्चित है, अरविंद केजरीवाल कभी भी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे। जैसे अभी ये दोनों कह रहे थे, मतलब कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, किसी के भी साथ नहीं, भ्रष्टाचार करने वालों के साथ तो निसंदेह हम कहीं नहीं जाएंगे। केंद्र में जा सकते हैं, स्टेट में नहीं जाएंगे। क्यों बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं, ये आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं, आपने बोला
आपने कमेंट किया, आप उनसे सवाल करते हैं कि भ्रष्टाचार के साथ नहीं जाएंगे, आपने कहा इसका मतलब कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, ये कमेंट के साथ नहीं जाएंगे। सुनिए ये कमेंट इसलिए सुनिए अरे रुकिए ना, ये लाइव इसलिए है और ये कमेंट सुनिए पहले शुभदेश जी, अरे सुनिए, आरोप लगाने से पहले सुनिए शुभदेश जी, ये सवाल इसलिए कहा गया क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो पैक्ट है ना केंद्र में, वो बीजेपी के साथ नहीं है, आप ही की पार्टी के साथ है ना। तो कांग्रेस के साथ की तो बात होगी, बीजेपी के साथ तो आम आदमी पार्टी है ही नहीं, बीजेपी के साथ तो है ही नहीं आम आदमी पार्टी। अगर किसी के साथ है तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है, पहले भी थी केंद्र में। इसीलिए ये सवाल पूछा गया है कि अगर बात होती है तो कांग्रेस के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, सवाल ये था। आपने उसको गलत तरीके से लिया, चलिए वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी से राकेश त्रिपाठी। ओके रीमा जी, मैं एक बात कहूं, देखिए राष्ट्रीय जी जो बातें आज कह रही है, क्या लोकसभा का चुनाव लड़ते समय क्या ये बातें कहना बंद कर देंगे? क्या ये कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर पाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी जिसको लगातार बेईमान बता रही है, क्या उनका समर्थन कर पाएगी? अरे भाई, केंद्र में के लिए गठबंधन किया है तो आज इस प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ये आरोप उस समय मिट जाएंगे? ये कैसे संभव हो सकता है? आप जब राज्य में एक दूसरे के दुश्मन हैं तो केंद्र में साथ नहीं हो सकते हैं। ये आप जिनको आरोपी बता रहे हैं, भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, अपराधी बता रहे हैं, उनका कैसे महिमा मंडन करेंगे लोकसभा चुनाव में? पहले बीजेपी को अपनी गिरफ्तारी झांक कर चाहिए कि आप लोग वाशिंग मशीन का आपने जिसके लिए 3 दिन पहले मोदी जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला। रुके वक्त की बात है मेरे पास। राजश्री जी, अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स पर हम जाएंगे तो बहुत सारे पुराने स्टेटमेंट सबके निकलेंगे, अरविंद केजरीवाल के भी निकलेंगे, फिर वो माफी भी निकलेगी, तमाम चीजें निकलेंगी। इसलिए अभी मैं उस डिबेट में नहीं जा रही क्योंकि वक्त की बात है, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए राजस्थान के रण में अब लाल डायरी का सच क्या है वो तो जनता ही तय करेगी, लेकिन जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा वो दो ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं जिसको लेकर सभी के अपने अपने संकल्प हैं, और जाहिर तौर पर बागियों की जो समस्या है उससे कैसे दोनों पार्टियां जूझेंगी वो भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि इस वक्त राजस्थान में चर्चा का विषय है। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।